Amen. ये साल, this year is the year of multiplied blessing. ये साल दुगना दुगना आशीषों का साल है. एक कैमल नहीं, not one camel, 10 camels are coming. एक कैमल नहीं है, 10 ओटे आने वाला है. It is coming already. It is already here. 10 camels are coming. बोलो 10 ओटे आ रहे हैं मेरे लिए. Hallelujah. आइए हम खड़े हो जाए, वचन पढ़े. Let's turn to Genesis chapter 24. उत्पत्ति का किताब 26 है ना, 24 24 का 11 Genesis chapter 24 verse 11. अंदलेकी रबखंदराबा ओ शंदरवरद रंदी अरियबे अब्बा. क्या लिखा हुआ वचन में? What does it says? उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बिठाया. The Bible says he made his camels kneel down outside the city. शहर के बाहर खुदा का सेवक ने ऊंटों को घुटने में, what does it say? क्या लिखा हुआ? कुएं के पास बिठाया. कुआं के पास बिठाया. फिर क्या लिखा हुआ है? वह संध्या का समय था जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं. God's timing is perfect in your life. प्रभु का समय आपके जीवन में उत्तम है. आज प्रभु बोल रहे हैं मेरे. He does things in your life at the right time. प्रभु आपके जीवन में सही वक्त में सही बात को करने वाला है. Father Atiyariaba, Lord, your word, Daddy. Eliezer made his camels kneel down at the well. एलियासर ने 10 ओटों को बिठा दिया कुआं के बाहर. Lord, this is the place of your well, Daddy. ये जगह आपका कुआं है प्रभु. आज प्रभु हम दुआ करता हूं, 10 camels will kneel in this place. हमारे लिए 10 ओटे घुटने में आ जाएगा. यीशु के नाम से मानता हूं. आमेन. सबने बोला? Please be seated. You know the promises this year. I have so many messages because I'm collecting whatever the Lord has spoken to us for this year. This year means not 2023. ये नहीं है हम ये साल का मतलब ये नहीं है 2023, क्योंकि we start a new year at Rosh Hashanah. हम सितंबर में जब रोश हशाना मनाया था, हमारा नया साल शुरू हो गया हुआ है. When the Jewish people celebrate their new year, we also celebrate with them. हमने भी उनके साथ नया साल शुरू हो गया. The Lord always gives the promise. Since the time जब से हमने रोश हशाना मनाना शुरू किया, from the time we started celebrating new year at the time of Rosh Hashanah, उस समय से प्रभु नया साल का वायदा उसी समय देता है. He gives the promise for the coming year at the time of Rosh Hashanah. ये साल का 2024 5784 का promises are camels are coming. ओटे आ रही है. बोलो ओटे आ रही है. Camels are coming. When camels comes, camel always represent your provision. ओटे ये दर्शाता है आपका जरूरत है, आपका गसाना को, आपके लिए जो वरदान का जरूरत है. Camels always bring gift for you. Camels always bring the water you need. Camels always bring the provision you need. So इस साल एक ओटे नहीं है. Last year it was 1 camel I saw. 2022 रोश हशाना, 2022 का रोश हशाना जब हम सेलिब्रेट किया था, 2022-23 के लिए, 2023 के लिए मैंने दर्शन देखा था. I saw the vision. एक कैमल ऊंटों अपना घुटने में आ रहे थे. I saw 1 camel on its knees. But in this year, for 2024, the 5784, the Lord told me it's not 1 camel. एक ऊँट नहीं है. मैंने 10 camel को तेरा जीवन में भेजने वाला है. I am going to send 10 camels for you.
Ateleki Rabakhandaraba. And last Saturday when I was preparing, not this Saturday, last Saturday, when I was preparing the message, जब मैं वचन तैयार कर रहे थे, प्रभु ने मुझे बोला, Genesis 24 is a chapter for this year. उत्पत्ति का 24 इस साल का वायदा का चैप्टर है. कितना लोगों को समझ आ गया? And surprisingly and amazingly, surprisingly, अचानक अर्चना, राधिका, मैं और भाई जॉन और मेरा हस्बैंड और हेडन, हमने एक मीटिंग के लिए गया था. We went for a meeting towards the CMC side. You know what the preacher chose the chapter? Genesis 24. उस दिन या वो प्रचारक ने वही चैप्टर से प्रचार कर रहे थे. उत्पत्ति का 26 आपका वायदा का चैप्टर है. Genesis 24 is your promise. You know, when God gives you a promise, what is a promise? ये वायदा क्या होता है? What is a promise? You know, when the Lord was taking the children of Israel to the promised land, प्रभु ने जब खुदा का लोगों को मिस्र देश से वायदा का देश में लेके जा रहे थे, you know, the Lord said, this is the promised land. ये क्या है? This is the promise. You understand? Children of Israel are here. प्रभु का लोग इधर है. प्रभु उनको बोल रही है, the Lord was telling them, I have given you that land. मैंने तुझे दे चुका है. समझ गया ना? मैंने तुझे वायदा दे चुका है. I have given you. That is yours. तेरा है. समझ गया ना? पर पता है उनको क्या करना था? They had to go and pick it up. समझ गया ना? वो जाके हासिल करना था. उसके बीच में लड़ाइयां होते थे. You know, we were celebrating Sukkot here. You know, हमने इधर just Friday we were celebrating the Feast of Tabernacle. हम है ना सुक्कोत मना रहे थे, Feast of Tent. है ना, जब प्रभु ने उनके साथ रहा था. You know, they had to go through the Rocky Mountain. वो पहाड़ों से जाना पड़ते थे. घाटियों में आंसू बहाना पड़ते थे. They had to go through the valley. समझ गया ना? And they had to go through fire. बहुत बातों से उनको जाना पड़ा, क्योंकि वायदा तो दे चुका है. Promise is given, but you have to make yourself, prepare yourself. अपने आप को तैयार करना है और योग्य बनाना है, और जाके आपको इसको उठाना पड़ेगा. फिर आपके हाथ में आ जाता है. You have to possess it, then you will have it. वायदा को देना, पाना दो बात होता है. Promise and possession is two things. You understand? कितना लोगों को समझ आ गया? Promise is given already, it is yours. वायदा दे चुका है, तेरा ही है. बोलो मेरा ही है. पर तेरे को उसको पाना पड़ेगा. You will have to possess it. Just because you've been given a promise, बस वायदा मिल गया हुआ है. If you are sitting here, promise is there. वायदा कहाँ है? उधर है. तेरे को विश्वास का कुश्ती लड़के, you have to fight a good fight. पौलुस बोलता है, Paul says, I fought a good fight, not a bad fight. ये नहीं, हल्का युद्ध नहीं है, हल्का कुश्ती नहीं है. समझ गया ना? हल्का कुश्ती नहीं है भाई. I have to fight a good fight to keep my faith. मैं अपना विश्वास को बना के रखने के लिए जब तक वो पाता नहीं है, मेरे को कुश्ती लड़ना पड़ा. कितना लोगों को समझ आ गया? Till I possess that promise, Paul says, I had to fight a good fight to keep my faith, because this is a journey. एक यात्रा है. कितना लोगों को समझ आ गया? एक this is a journey. In between you will find difficulties. आपको पहाड़ के
चढ़ना पड़ेगा, आपको घाटी से निकलना पड़ेगा, आंसू बहाना पड़ेगा. You will have to weep, you will have to be lonely. अकेले रॉकी माउंटेन के ऊपर से. It will look like it is impossible. ऐसे लगता है ये तो असंभव है. इतना लोगों को समझ आ गया. Promise and possession is two things. वायदा मिलना और उसको पाना, बोलो एक दूसरे को दो बातें भाई. It is two different things. इतना लोगों को समझ आ गया. Now the Bible says, Genesis chapter 24, that means everything. I will read the promises which the Lord has given for this year. ध्यान दे आ रहा तो रोंदो रबा. First thing is Rehoboth. पहला वायदा क्या है? Rehoboth means the Lord is making spacious room for you. प्रभु तेरे को बढ़ा रही है. बोलो प्रभु मेरे को बढ़ा रही है. बोलो Rehoboth. Rehoboth means he is enlarging my space. Are you here with me? Telando rokuraba. Receive it. Say amen to it. Okay. बोलो गले लगा दो. वचन को गले लगाना पड़ता है. They embrace the word knowing it is from the Lord. ये जान के प्रभु से आ रही है, उन्होंने वचन को गला लगा दी. एक दूसरे को बोलो वचन को गला लगा दिया. Embrace the word. Then the second thing is Ebenezer. Ebenezer means hither till here he has helped me. अभी तक उसने मुझे मदद किया, आगे भी वो मदद करेगा. He will help me in the coming days. वो हमारा Ebenezer है. इतना लोगों को समझ आ गया. The third thing is camels are coming. ऊंटें आ रही है. बोलो ऊंटें आ रही है. और ये साल आपका शौकत के जगह पे खुशी देने वाला है. He is going to change your mourning into joy this year. He is going to आपका शौकत को बदल के आनंद को देने वाला है. He is going to change your mourning into dancing. आते रेंदे रेखी राबा. Year of success. ये साल सफलता का साल है. बोलो सफलता का साल है. It's a year of success. It's a year of open door. ये खुला दरवाजा का साल है. That means till now whatever the door has been closed before you, ये साल में वो आपके सामने खुलने वाला है. God is going to open it before you. Are you here with me? इतना लोगों को समझ आ गया. Comfort is coming. It has been paid. And then the Lord told me, you will change the laws according to your need. तू व्यवस्था को लिखेगा जैसे तेरा जरूरत है. You will write it, decrees according to your need, and it shall be done for you. तू व्यवस्था को लिखेगा जैसे तेरा जरूरत है. You will write laws according to your need, and it shall be done. वो हो जाएगा. Because the Lord showed me a vision. प्रभु ने मुझे दर्शन दिया था. एस्तर ने व्यवस्था को बदल के लिखा. She changed the law according in their favor. आपने व्यवस्था को लिखेगा आपके favor में. I don't know what you say for favor. है ना, आपके लिए जो जरूरत है, you know, if as your need, जैसे आपका जरूरत है, आप व्यवस्था को बदलेगा. लिखना शुरू कर. Start writing laws in your favor. व्यवस्था को लिखना शुरू कर. कितना लोगों को समझ आ गया? आइए, we will go to Genesis chapter 24. उत्पत्ति का 24 में क्या लिखा हुआ? उत्पत्ति का 24:1. What does it say? पढ़ो, जल्दी पढ़े कोई. अब्राहम वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा So the Bible says, वचन में लिखा हुआ है, Abraham was very old. Abraham बुजुर्ग हो गया था ना, and he was very rich. वो बहुत
धनी था ना, and he called his servant, the oldest servant. The older you are in the service of God, the more you will rule over the things of God. वो अपना बसूरक सेवक को बुलाया और जो सारा बातों के ऊपर राज्य कर रहे हैं, मैं आपके ऊपर बोलता हूं, जितना प्रभु का सेवा वफादारी से करेगा, उतना ज्यादा, जितना देर आप करेगा, उतना ज्यादा प्रभु आपका अधीन में घसाना को देने वाला है. The older you are in the service of God, जितना ज्यादा प्रभु का सेवा में वफादारी में लग जाता है, प्रभु आपको उतना ज्यादा बातों का अधिकारी बनाने वाला है. हाल बोलो हालेलुया. Receive it now in Jesus name. Atele. And the Bible says, you know, he called his servant and he gave him some responsibilities. The older you are, जितना पुराना हो जाता है प्रभु का सेवा में, you are going to be given responsibilities which you wouldn't be able to do with your strength. आपके जीवन में ऐसे जिम्मेवारी हम प्रभु देने वाला है, तू अपना ताकत से उसको पूरा नहीं कर पाएगा. The older you are, the greater your responsibilities are going to be. Are you here with me? So Eliezer goes. I don't want to go into all that thing because we are going to focus on the bride. आज हम तबती लंदो रोको रो, आज हम उस बातों के ऊपर ध्यान देना है. वो दुल्हन कैसे तैयार होना चाहिए. How the bride need to get ready, because the camels not only Isaac saw, सिर्फ आइसक ने ओटों को नहीं देखा, रेबेका के सामने ओटें घुटने में था. आपको समझ नहीं आया क्या? Isaac saw it is coming. Rebecca saw it kneeling before her. Isaac ने देखा था ओटें आ रही है. रेबेका ने देखा था वो उसके सामने घुटने में आ चुका था. Are you here with me? The portion of the bride, दुल्हन का हिस्सा, the portion of the bride is greater than the portion of others. ये दुल्हन का हिस्सा दूसरों से ज्यादा बढ़कर है. You did not hear it. सुन लिया क्या? कितना लोग सुन लिया? Are you here with me? कितना लोग सुन लिया? Isaac saw it is coming. Rebecca, Isaac ने देखा आ रहे थे. Rebecca, before Rebecca, the camels were bending down. ओंटें घुटने में आ रहे थे अनलोड करने के लिए, वो तोहफा और घसाना को उतारने के लिए. What Isaac saw, you will possess it. जो Isaac ने देखा आप हासिल करेगा. ताली बजा के प्रभु के लिए आमेन बोलो. हालेलुया. What Isaac could see, you will possess it. जो Isaac ने देखा तू पाने वाला है. कितना लोगों को समझ आ गया? So the Bible says, ध्यान दिया रहा. Here the Eliezer goes. This year is the year of angelic intervention. ये साल स्वर्गदूतों का सेवा आपके जीवन में हो जाएगा. You know how do we have angelic intervention? आपको पता है कैसे आप स्वर्गदूतों का सेवा को पा सकता है? आपने ना प्रभु को बोलना. You need to tell Lord, आपने स्वर्गदूतों को मेरे लिए दिया. You have given the angels for me. Angels are mine. स्वर्गदूत मेरा है. क्योंकि जिस बातों को आप आदर देता है वो बातें आपके लिए हो जाता है. Whatever you honor, you will attract it towards you. वो आपके और वो आप खींच देता है. कितना लोगों को समझा? Are you here with me? So the Bible says, now we are going to go Genesis chapter 24 verse 14. इसीलिए ऐसा 11. Okay, read 11. उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बिठाया. वह संध्या का समय था जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं. You know the Bible says, Father God sent His Son
पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए दुल्हन तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा हुआ है. Father God has sent. When Jesus came, जब यीशु मसीह आया था, दुल्हन ने हाँ बोला था. The bride said yes to Jesus, है ना? समझ गया ना? हम सब बोला था ना यीशु के लिए हाँ. We all said है ना? We all said है ना? Yes Jesus बोला ना? है ना? Jesus went back है ना? हमने यीशु को हाँ बोला. यीशु मसीह वापस चले गया ना? Now God has sent the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को इसलिए भेजा है. पता है अब्राहम का सेवरन का नाम था एलियासर. The name of Abraham's servant was Eliezer. आपको पता है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है खुदा का मददगार और खुदा का चैन. The meaning of Eliezer is the comfort of God and the help of God. कौन है हमारा मददगार? Who is our comforter? Who is our helper? कौन है हमारा मददगार? कौन है हमारा चैन देने वाला? कौन है भाई? It's the Holy Spirit. Bride said yes, but she's not ready yet. वो अभी तक तैयार नहीं है. That is why we are learning this. Before Rebecca, the camels were bending down. Rebecca के सामने ऊंटे घुटने पे आया था. समझ गए ना? रबाका को लेके जाने के लिए ऊंटे आया था. You know, the camels were sent to take the bride to the bridegroom. समझ गया ना? पर रेबेका को तैयार होना था. If Rebecca was not ready, यदि रेबेका तैयार नहीं है तो read the words. क्या लिखा हुआ है इधर? What does it say? 14. इसीलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी. ये वही है This is the appointed one. You know the Bible says, अभी हम पढ़ रहे थे, He made the camel kneel down. वो ओटों को घुटने में होने दिया. कहाँ होने दिया था? Where he made them kneel down. कहाँ होने दिया था? कुआं के कहाँ होने दिया था? बालकनी सो रही है क्या? Where? कहाँ? ऊंचा बोलो कहाँ? At the well. कुआं के पास है ना? And then it says the many women comes. अलग अलग औरत आते थे ना? Many women comes है ना? लिखा हुआ ना? पर एलियास ने बोला, I don't want anyone. मेरे को कोई भी नहीं चाहिए. When Jesus came, He chose us and appointed us. जब यीशु मसीह आया था, हमको चुना और हमको नियुक्त किया. लिखा हुआ ना? It says है ना? इसका मतलब यीशु जब आया था, when Eliezer came, he said, I want that appointed one. मेरे को वो चाहिए जिसको आपने नियुक्त किया हुआ है. I want to speak to young boys and girls. जवान लड़की लड़कियां. There may be many men and women. अलग अलग औरत होगा, बहुत लड़कियां, बहुत लड़का होगा. But खुदा ने आपके लिए एक नियुक्त किया हुआ को रखा हुआ है. But God has kept an appointed one for you. You wait till you have that appointed one. अलग अलग औरत अलग अलग आपके पास आ जाएगा. Many women will come. Many women were there. बहुत स्त्री था उस जगह पे ना. But Eliezer was after that appointed one. Eliezer उसके पीछे था. पवित्र आत्मा आज हमारे पीछे इसलिए है, हमको खुदा ने उसका दुल्हन बनने के लिए नियुक्त कर चुका है. He has Holy Spirit is with us. Holy Spirit is after us because we have been appointed as the bride of the bridegroom. कितना लोगों को समझ आ गया? You here with me? Be excited. We are the bride. मीठा है तो भी bride है भाई. दाढ़ी है तो भी bride है ना. Even if you are beard, we are the brides है ना. There is no male or female in the spiritual world. कोई आदमी और औरत है ही नहीं.
बोलो भाई लोग बोलो हम भी दुल्हन है भाई। बोलो टेल ब्रदर्स से आई एम आल्सो द ब्राइड। अरे नहीं है शक है क्या? टेल योरसेल्फ आई एम आल्सो द ब्राइड, मैं भी प्रभु का दुल्हन है। समझ गया ना? जो बोलेगा वो आप बनेगा। वॉट एवर यू क्लेम यू विल बिकम दैट। समझ गया ना? Then Eliezer prayed. What does it say? क्या लिखा हुआ है? He prayed a difficult thing. He prayed a complicated prayer. वो अजीब सा प्रेयर कर लिया बाबा। He prayed, वो इतना ऐसे प्रार्थना किया, घुमा के प्रार्थना किया। अरे सीधा प्रार्थना करना था। He should have prayed a straight prayer. A lady will come. She will say hello to me. एक औरत आ जाएगा, वो मुझे हेलो बोलेगा, अंकल जी बुलाएगा, वो दुल्हन होगा। Why didn't he say that? A girl will come, she will say salam to me, and she will call me uncle, and she is going to be my master's daughter-in-law. No. Eliezer knew one thing. Out of his experience, एक बात एलियासर जानते थे, whenever God does something, if it is not complicated for you, यदि वो घुमा के आपके लिए नहीं है तो वो खुदा से नहीं है। आपको समझ नहीं आया? Eliezer knew one thing. Whenever God does something, he complicated it so much so that he can test you till you are found faithful. आपको समझ गया ना? खुदा जब कोई काम करता है, ये एलियासर को पता था, वो इतना घुमाएगा, घुमा के आप तंग हो जाएगा। जब तक आपको परखता नहीं है, प्रभु अपना बातें आपके हाथ में नहीं सुनता। Unless he tests you, he will not hand over that appointed one in your heart. समझ गया ना? It may look ugly now. अरे कुछ नहीं हो रही है। Nothing is happening. Everything is happening with him. प्रभु के साथ सब कुछ हो रही है। समझ गया ना? प्रभु के साथ सब कुछ हो रही है। If it is not impossible, it is not from God. यदि असंभव नहीं है तो वो प्रभु से नहीं है। आज जो आपके जीवन में आपको लगता है ये कभी नहीं सुधरने वाला है, if you feel nothing is happening, this never going to happen, that means that God has sealed it. प्रभु ने उसके ऊपर मोहर लगा हुआ। Are you here with me? कितना लोगों को समझ आ गया? कितना लोगों को समझ आ गया? Now Eliezer had a great prayer. Never pray. कभी भी है ना, छोटी बातें बड़ी बातों के लिए, because he does great things according to his greatness. वो महाकार्यों को करता है उसका महानता का समान। समझ गया ना? फिर क्या लिखा हुआ 24 में? क्या लिखा हुआ 24 का 14 में? And then he finished the prayer. I don't know whether he remembered what he prayed. इतना बड़ा लंबा चौड़ा घुमा के प्रार्थना है, मैं तो भूलना था ना। I would have forgotten, but he prayed. The 15 में क्या लिखा? What does 5 says? 15 what does it say? और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबेका जो अब्राहम के भाई, Before he finished praying, प्रार्थना को बंद करने से पहले, timing of the Lord is so important in our life. प्रभु का जो वक्त हमारे लिए है ना? आज सुबह when we started the worship service, जब हम प्रार्थना को शुरू किया था, सर्विस शुरू किया था, बहुत कम लोग था, people are less. उस समय प्रभु ने मेरे मन में एक बात डाला. The Lord put something in my heart. God does something, a particular thing at a particular time. प्रभु एक वक्त पे वही बात को करता, वही वक्त में. कितना लोगों को समझ आ गया? वही वक्त, there is a timing for a particular time for a particular thing. समझ आ रहे हैं ना? कुछ बात के लिए प्रभु के पास टाइम है. यदि वो समय पे आप वो जगह पे नहीं है तो, if you are not there at that particular time, that for that particular blessing, प्रभु आशीष को पीछे लेके आपके पीछे नहीं आ जाएगा, आप वो आशीष को खो जाता है, क्योंकि आप, because you are not there at that time, you miss that particular blessing.
समझ गया ना, समझ आ गया ना. एलियासर ने प्रार्थना बंद किया. There comes Rebecca. She carried the pitcher on her shoulder. Rebecca will always be a servant type. प्रभु का दुल्हन हर समय काम करने के लिए तख्त पर है. Are you here with me? Rebecca's will always be ready. They are ready. Then the Bible says, उसके बाद क्या लिखा? What does it say? क्या लिखा? जो अब्राहम के भाई नाहार के जन्माए मिल्का के पुत्र ना बतूएल इधर क्या? हाँ ठीक है. हाँ बतूएल. हाँ पढ़ो. वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई. हाँ. वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था. वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई. Listen. Everyone cannot become the bride of Isaac. सब इसहाका जिसने अपना जान बलि के लिए दिया था, the one who gave his life to be sacrificed, he must have been 36 years old, because we see in the previous chapter, इससे ये चैप्टर का पहले चैप्टर में हम देखता है 22 में देखता है 22 chapter we see there Isaac is going and laying on the wood, है ना, लकड़ी के ऊपर लेटा हुआ है. दिस नाउ अभी आइसक 40 साल है ना. नाउ आइसक इज 40 years. दैट मीन्स व्हेन आइसक वाज laying on the wood, वो लकड़ी के ऊपर लेटा था, he was about 35. 35 साल से ऊपर था. Are you here with me? The one who was ready to give his life for, to fulfill with the Father's will, जो पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए जिसने अपना जान दिया हुआ है, उसका दुल्हन सब नहीं हो सकता. Everyone cannot become his bride. There Rebecca came. अरे 10 ऊँटें इधर घुटने में है. All the camels are here. Rebecca पानी का खड़ा लेके आ रही है. She is carrying the pitcher. All the camels are here. There are many young men. जवान लड़का लोग है उसके साथ. Eliezer is standing there. Eliezer भी खड़ा है. There was young men, many young men. It was said in the history almost 500 young men were with them. 500 जवान लड़का लोग था, भोजी लोग था एलियासर के साथ. समझ गया ना? But here comes Rebecca. Here she is carrying her. The Bible says she is beautiful. 3 qualities. Beauty, virgin, पवित्र, कुंवारी. किसी ने उसको छुआ नहीं अभी तक. किसी पुरुष ने उसको छुआ नहीं. No man has touched. समझ गया ना? कितना लोगों को समझ आ गया? आते रंदो रोको रोबो. कितना लोगों को समझ आ गया? Are you here with me? There comes Rebecca. Rebecca is not distracted. She comes, she goes to the well. वो आता है, कुआं पे जाता है. प्रभु का दुल्हन. यदि आप इधर उधर का बातों में, if you are distracted by the young man standing there, ये जवान लड़का खड़ा है, उसको देखना है मेरे को. I want to see the young man. अरे there is something else. इस साइड में कुछ और है. The Bible says Noah walked with God. Noah प्रभु के साथ चला. कैसे चला था? Enoch walked with God. Noah did all that God told him to do. Enoch ने प्रभु के साथ चला. पता है कब एनक ने प्रभु के साथ चला था? इधर व्यभिचार हो रहे थे. There was angels coming, fallen angels coming and having sex with human beings. गिरा हुआ स्वर्गदूत आंखें औरतों के साथ गलत संबंध कर रहे थे. इधर दारुएं चल रहे थे, इधर हत्या चल रहे थे. Here something else was going on. एनक अपना ध्यान, his focus was only on the Lord.
कितना लोगों को समझ आ गया? Are you here with me? Rebecca cannot be distracted. Are you here? Rebecca दूसरा बातों को नहीं देख सकता. Bride of Christ, प्रभु का दुल्हन. बहुत कुछ बातें आपका चारों तरफ है. There are so many things around you. इतना कुछ बातें आपके चारों तरफ में, पर आपको और मुझे, for me and you, my Isaac is waiting. मेरा दुल्हा इंतजार कर रही है. I need to keep myself. मैं अपने आप को उसके लिए रखना है. Camels are here, doesn't matter. When my time come, camels ओटे मेरा सामने आ जाएगा. Are you here with me? कितना लोगों को समझ आ गया? So what did she do? उसने क्या किया? There goes Eliezer. Eliezer भाग गया ना. He ran and went to Rebecca. बोला हुआ ना. Said, मालिक बेटी आप मुझे पानी पिला दे. Give me water. You know what she said? If you have to become the bride, यदि आप दुल्हन बनना तो प्रभु के, आपके अंदर वो बातें होना चाहिए जो पवित्र आत्मा के अंदर जो चल रही है. You will need to have that, because what Eliezer prayed, there she is telling them. इसका मतलब if you want to be the bride, यदि आप दुल्हन बनना तो जो पवित्र आत्मा के अंदर, whatever is inside the Holy Spirit, you will have to have the same thoughts. समझ गया ना? वही बातें बोला ना रबेका, वही बोला ना. समझ गए ना? And then I'm going fast. रबेका कितना ओटों को पानी पिलाया था? How many? हैं? किसी ने पूछा था, किसी ने उसको बोला था प्लीज मेरा ओटों को पानी पिला? Did anyone ask? She saw a need and she started fulfilling it. उसने देखा एक जरूरत. सच्चा दुल्हन वो है प्रभु का भवन में. They will see a need. Eliezer didn't say please इनको भी पानी पिला दे. He didn't say, he prayed. It was inside his heart. You will meet the need of the Holy Spirit if you want to be a bride. यदि आप जो पवित्र आत्मा के अंदर बातें चल रहे थे, आप उसको बिना बोल के पूरा करेगा. Are you here with me? कितना लोगों को समझ आ गया? वही बात रेबेका ने किया जो एलियासर ने मांगा था. समझ आ गया ना? कितना लोगों को समझ आ गया? रेबेका के बारे में we will learn about how you can be a virgin, how you can be a this. वो सब अगले हफ्ते के बाद हम देख लेगा. But then we need to know one thing. Come, let's turn to इधर हम देख ले. Let's come here. रेबेका sounded so great है ना? रेबेका बहुत बढ़िया है ना? वो सुंदर है. बोलो सुंदर है. Is beautiful. एलियासर देखते ही रह गया. Eliezer stared at her because she was so beautiful. She was hard working. मेहनत करने वाला, दिखावा करने के वाला. Never got distracted. इधर उधर दिमाग नहीं भटका. समझ गया ना? She was focused. वो ध्यान मकसद में था. Her focus was on the purpose of God. समझ गया ना? कितना लोगों को समझ आ गया? और मेहनत करते गया. She went down and came up. गया. कुआं नीचे होता ना? गया आया. And she was full of wet. वो गिला था. प्रभु का दुल्हन जीवित वचन के साथ गिला हो. The bride of Christ is wet with the word of God. पता है पानी जीवन का जल, पानी जो है वचन को दर्शाता है. पानी वो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है. वो पानी गया, उठाया. पानी बगुदा का दुल्हन कुआं के अंदर रहता है. You know, God's bride will live. Rebecca's will always be at the well. कितना लोग समझ आ गया? 10 ओटन चाहिए ना?
यू वांट 10 कैमल्स है ना, बी वेट, गिला होने दो वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा का द्वारा गिला होने दो, अपने आप को गिला करे, समझ गया ना। कितना लोगों को नींद आ रहा था, लाकुरा बकंदर रेते रे, पानी का निशाना, कपड़ा पानी से भरा हुआ, she was clothed, her clothes was filled with water, समझ गया ना। then हम आगे देख ले थोड़ा सा और, I want 10 minutes more. then Eliezer, you know, if you see chapter 24, it's all about worship and prayer. एलियासर ने प्रार्थना किया, एलियासर ने आराधना किया, एलियासर ने प्रार्थना किया, एलिया prayed, Elias worshipped, they worshipped. It's full of, if you want to get anything from the Lord, जो वायदा इस साल का पूरा होना, तो this year promise will be fulfilled only by worship and prayer. कितना लोगों को समझ आ गया? आराधना और प्रार्थना का द्वारा। आइए हम एक बात और फोकस करना चाहता है। 67 में क्या लिखा? What does it say? 67। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया। लिखा हुआ ना, आइसक ने सुंदर रबेका को, beautiful Rebecca, Isaac took the beautiful Rebecca, the hard-working Rebecca, the persistent Rebecca, वो टट्टे रहने वाला Rebecca को, सब कुछ छोड़ के पीछे लगा हुआ Rebecca को, because she left everything and followed Eliezer, है ना? वो Rebecca को अपने तंबू में लेके गया और प्यार किया, and they lived forevermore, वो अनंत काल तक जिया। ऐसे लिखा हुआ है क्या? कितना लोगों को समझ आ गया? ये लिखा हुआ, आइसक loved Rebecca, लिखा हुआ ना, आइसक ने रबेका से प्यार किया। पर यदि हम अगला 2-3 चैप्टर देखा तो, if we see the next 2-3 chapters, Rebecca's life was not a fairy tale. Rebecca का जीवन एक कहानी, सुंदर कहानी नहीं रहा हुआ है। Are you here with me? कितना लोग सुन रही है वचन को? कितना लोग सुन रही है? Rebecca's beginning was great. Rebecca का बीच वाला जिंदगी भी बढ़िया था, उसका शुरुआत भी बढ़िया था। But it is said she died of heart to break broken heart. उसका मौत अंत का दिनों टूटा हुआ दिलों के साथ उसने जीवन बिताया था। She was heartbroken towards the end. आपको पता है क्यों? You know why? She was a woman who went to the Lord when she had doubt. वो एक ऐसे औरत था, जब भी अपना परिवार में शक आ गया, वो प्रभु के पास दौड़ के जाते थे, प्रभु आप मेरे से बात कर, Lord you speak to me Lord. ऐसे औरत था। बट जब अंत का दिनों में वो शांति से मरा नहीं है, she did not die in peace towards her end. You know why? जब वो प्रभु के पास गया था, when she went to the Lord, God gave her a promise. प्रभु ने उसको वायदा दिया था, तेरे छोटा बड़े का सेवा करूंगा। बोला था ना, your younger son will serve the older. कितना लोगों को समझ आ गया? सुन रहे हैं ना? ध्यान से सुनना वचन को। प्रभु ने उसको एक वायदा दिया था। प्रभु ने कितना लोगों को वायदा दिया हुआ? God has given us many promises. समझ गया ना? प्रभु ने रेबेका को वायदा दिया था, आपको शायद वायदा दिया होगा, your household will be saved. तेरा घराना बच जाएगा, तेरा बीमारी चंगा हो जाएगा, your healing will take place, you know, you are this, you are that. प्रभु ने अलग अलग वायदा दिया होगा, समझ गया ना? She had received a word from the Lord. वो प्रभु से एक वायदा पाया था। आइसक loved Rebecca, आइसक रेबेका से प्यार किया था। उनका जिंदगी एक फेरी टेल होना था, their life would have been a fairy tale. समझ गया ना? पर पता है क्या हो गया था? The Bible says, वचन में लिखा हुआ, God had given her a promise. प्रभु ने उसको एक वायदा दिया था। पता है क्या वायदा था? तेरा छोटा बड़े का, the younger will serve the elder. बोला था ना? कितना लोगों को पता है? Are you here with me?
समझ गया ना? बिकॉज आई वांट टू प्रे फॉर द पीपल हु थिंक दे हैव मेस्ड अप. मैंने आज उनके लिए प्रार्थना करना चाहता, प्रभु उनके साथ आज बात करना चाहता जिनको लगता है प्रभु मैंने अपना जिंदगी को बर्बाद किया. आई हैव मेस्ड अप लॉर्ड. मैंने नहीं पहुंचा उधर जहां पहुंचना चाहिए. सो रेबेका गॉट ए वर्ड. मिला था ना. नाउ रेबेका इज वेटिंग वाचिंग योर सन्स. वो अपना दोनों बेटे को देखते जा रहे थे, ईसो और जेकब है ना. ईसो और याकूब है ना. बोलो ईसो और जेकब. दे बोथ आर ग्रोइंग. दोनों बढ़ रही है ना. एक लड़का हर समय जंगल में भागता है. वन गोस टू द जंगल. जेकब ऑलवेज हाइड बिहाइंड द एप्रन. याकूब माँ का एप्रन के नीचे, माँ मैं बर्तन मांजूंगा आपके साथ. आई विल वॉश द बर्तन फॉर यू. आई विल कट द वेजिटेबल फॉर यू. मैं आपके लिए सब्जी काटूंगा, मीट काटूंगा. जेकब से मदर्स सन. जेकब कौन था? माँ का पुत्र था. समझ गया ना? कितना लोगों को समझ आ रही है ना? कितना लोगों को समझ आ रही है? माँ का पुत्र, माँ का बेटा था, है ना. वन डे आइसक ने सोचा, एक दिन आइसक ने सोचा अरे मैं बुढ़ा हो गया. आई एम ओल्ड नाउ. मेरे को दिखाई नहीं दे रही है. जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट सी थिंग्स डजंट मीन द एंड हैज कम. ये नहीं है आपको सही तरह दिखाई नहीं दे रहे, इसका मतलब ये नहीं है आपका अंत हो चुका है. दिला समझ नहीं आया क्या? आइसक ने सोचा, आइसक थॉट I can't see now properly. मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रही है. मैं तो मरने वाला है. I'm going to die. समझ गया ना? उसने बेटों को भेज दिया. उसने अपना ईसो, अपना प्यारा बेटा जो मीट खिलाते थे, the one who used to feed him with meat, bear and I don't know what not. मेरे को नहीं पता कौन सा. समझ गया ना? रेबेका ने देखा अरे मेरा हस्बैंड तो बुढ़ा हो रही है, समय तो निकल रही है, वायदा पूरा नहीं हुआ. द प्रॉमिस इज नॉट फुलफिल्ड. अरे ही इज गेटिंग ओल्ड, ही इज गोइंग टू डाई. नाउ ही हैज सेंट हिज एल्डर सन. अभी तो उसने अपना बड़े बेटे को भेजा है. अरे उसको आशीष दिया तो जो प्रभु ने मेरे से बात किया हो क्या हो जाएगा. सपोज ही ब्लेसेस ईसो, व्हाट अबाउट व्हाट गॉड हैज स्पोकन टू मी. जो प्रभु ने मेरे से बात की वो क्या हो जाएगा. इसके अंदर डर आ गया. शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड, शी वॉज इम्पेशेंट. उसके अंदर बेजानी आ गया. उसके अंदर वो धीरज को खो दिया. उसके अंदर डर आ गया. समझ गया ना? कितना लोगों को समझ आ गया? आप और मैं ये जूता में खड़े होता. मेनी टाइम्स वी स्टैंड इन द शू ऑफ रेबेका. When we do not see, प्रभु आपने बोल दिया, प्रभु आपने बोल दिया, पर तो शादी हो रही है प्रभु. But Lord, things are happening. समझ गया ना? कितना लोगों को समझ आ गया? Are you here with me? पता नहीं आपके जीवन में होता है या सिर्फ मेरा जीवन में होता है, मेरे को नहीं पता. प्रभु आपने वायदा दिया. You promise. But Lord, समझ गया ना? You know what Rebecca did? She took the hands and things in her hand. वो अपने हाथ में बातों को ले लिया. प्रभु ने जो दिया हुआ वायदा, the promise what God has given, she started dealing with it according to her own understanding. जैसे उसने सोचा ऐसे करना शुरू किया. अपने हाथ में बातों को ले लिया. She took things in her hand. समझ गया ना? प्रभु के हाथ में छोड़ने का अलावा, she know even after that Isaac lived for a long time. इसहाक उसके बाद भी जिंदा रहा. जब हम सोचता खत्म होना है, खत्म हो रहे, उस समय खत्म नहीं होता. When we think it is getting over, the time is up. God says the time just began. समय शुरू हो गया हुआ है. हालेलुया. जब तेरा समय खत्म होता है, when your time is up, his time begins. समझ गया ना? उसने अपने हाथ में बातों को ले लिया. अपना पति को धोखा दिया. She deceived her husband and she lost both her sons. वो अपना दोनों बेटे को खो दिया.
Before her death, she didn't see both the sons. वो मरने से पहले याकूब को भी नहीं देखा, ईसो को भी नहीं देखा. Are you here with me? आज अभी आपको लगता है, you know the Bible says, Psalm 21:27, it says, He gives to His beloved even in His sleep. आप प्रभु अपना प्यारे को आप जब सोता है उस समय भी देता है. समझ गया ना? When the Lord gives you a promise, जब प्रभु आपको वायदा देता है. Are you here with promises? कितना लोग है इधर वायदा पाया हुआ है? How many of you have got वायदा? Promises है ना? वायदा नहीं दिया. बाइबल खोल के देख लो, वायदा ही वायदा है भाई. उसमें वायदा है, वायदा है. Wherever there is a problem, there is a promise. जहां आपके जीवन में समस्या है, उधर एक वायदा भी है. समझ गया ना? समझ गया ना? उधर एक वायदा भी है. Wherever there is problem, always there is a promise. जहां समस्या है, उधर एक वायदा है. कितना लोगों को समझ आ गया? You know the Bible says Abraham did not stagger in his promise. Abraham अपना वायदा में निराश नहीं हुआ. पता है क्या करना चाहिए? How do you not get weary? क्यों आप कैसे आप तंग नहीं हो सकता है? बहुत बार तंग हो जाता है ना, प्रभु कब तक इंतजार कर रहा हूं? हाउ लॉन्ग लॉर्ड आई विल वेट, हाउ लॉन्ग आई विल वेट. कितना देर? आपने वायदा दिया, यू प्रॉमिस मी बट नथिंग इज हैपनिंग. उल्टा हो रही है, ऑपोजिट इज हैपनिंग, है ना? यू नो व्हाट यू नीड टू डू? टेक द प्रॉमिस. वायदा को ले ले. यू नो हाउ द ज्यूइश पीपल प्रे? दे स्विंग देयर बॉडी. वो मेडिटेट, वो मनन करता है वायदा को. पता है कैसे मनन करता है? लॉर्ड आपने बोला, आप अपना प्यारों को नींद में भी देता है. लॉर्ड यू सेड दिस वर्ड, आपने यू टोल्ड मी दिस. लॉर्ड यू सेड आई बिलीव. लॉर्ड मैं विश्वास करता हूं, आपने बोला है, आपने बोला है, आपने मुझे दे देगा. समझ गया ना? द टाइम यू गेट वियरी, जिस समय आपका धीरज खत्म हो जाता है, पेशेंस खत्म हो जाता है, you will take things in your hand. तू अपने हाथ में बात लेके अपना समझ के अनुसार काम करना शुरू करेगा. We will start doing things. रेबेका बढ़िया, पर उसका अंत, her end was, her weakness was, she took the things in her hand. जो खुदा को करना था अपने हाथ में ले लिया. What God should have done, she took it in her hand. She tried to get it done. वो खुद करना शुरू किया. बहुत बार आप और मैं भी यही करता है ना. You and I do this. करता है ना? कितना लोग मेरे साथ है ना? We try to do it. समझ गया ना? बट प्रभु यही बोलता है, You will lose everything. तो सब कुछ खो जाएगा और अंत सही नहीं होगा. Her end was miserable. but एक बात हम सीखे रेबेका का लाइफ से, she is the one who is going to bring our destiny. वो हमारा मंजिल को हमारा जीवन में पूरा करने वाला. रेबेका carries our destiny. रेबेका में हमारा भविष्य का उत्तर है. कितना लोगों को समझ आ गया? she was hard working. वो मेहनत करने वाला, प्रभु का दिल का बातों को जानने वाला. she knew the heart of God. समझ गया ना? Let's move in her strength, not in her weakness. आइए हम जो रेबेका का बल में हम आगे बढ़े. आइए हम खड़े हो जाए. आज यदि आपको लगता है, if you feel, I want the chairs to be on the side.